Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel VMB Tutorial. So in last session we have discussed the exercise 11.1, right? And in today's session we are going to discuss the area of parallelogram and area of triangle. Okay, so let's start today's session. So area of parallelogram. So first we need to know what is this parallelogram. Parallelogram is a four-sided quadrilateral with opposite sides as parallel sides. Okay, it's a quadrilateral, it's a polygon with four sides. So it's a quadrilateral with opposite side parallel. इसकी opposite sides क्या होती हैं? Parallel होती है. Means ये side अगर suppose इसका name है ABCD. So in this quadrilateral, in this parallelogram, opposite sides means AB is parallel to CD and AD means this side is parallel to BC. Okay. So any quadrilateral in which opposite sides are parallel is called a parallelogram. Okay. So next is, what is the area of this parallelogram? In last session we had discussed area of square, area of rectangle. So square and rectangle are nothing but the quadrilaterals. Okay, so area of square is side into side. All the four sides of a square, all the four sides of a square are equal. Okay, so area of square is side into side. Okay, suppose if this is a square and these are the four equal sides. So area of this square will be side into side. Okay. Next, area of rectangle. रेक्टेंगल के केस में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. मीन्स वन पेयर साइड का लॉन्ग होगा और दूसरा पेयर साइड्स का शॉर्ट होगा. सो लॉन्ग साइड्स को हम क्या बोलते हैं? लेंथ, एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय एल. सिमिलरली शॉर्ट साइड्स को क्या बोलते हैं? ब्रेथ, एंड रिप्रेजेंट दिस बाय बी, स्मॉल बी. ओके, सो एरिया ऑफ दिस rectangle is length into breadth. Okay, this length and breadth का multiplication is area of rectangle. Next quadrilateral जिसकी हम बात कर रहे हैं, area of parallelogram. Parallelogram का एरिया क्या होगा? स्क्वायर के केस में साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल के केस में लेंथ इंटू ब्रेथ. बट पैरेललोग्राम के केस में एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो देख, लेट्स सी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सी, इफ वी टेक स्क्वायर, सो एरिया इज साइड इनटू साइड. मींस हियर adjacent side it will take the length of these adjacent side, means this side and this side. See, both are perpendicular because this angle is right angle. So both are perpendicular. So area is side into this side. Similarly in the case of rectangle, this is length and this is breadth, and between these two the angle is right angle. So this side length into breadth is its area. What about the parallelogram in which the sides are tilted? It is not necessary every angle of this parallelogram will be a right angle. Okay, जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज ऑफ 90 डिग्री. तो अब यहाँ पर हम क्या करें? एरिया तो आपके क्या? टू परपेंडिकुलर. मीन्स ये कि अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें हाइट क्या होगी? इस रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी. यहाँ पर भी अगर हम इस स्क्वायर की बात करते तो हाइट क्या होगी? यही साइड होगी. ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर हाइट क्या है? क्योंकि ये साइड्स क्या हैं? टिल्टेड है. दीज आर नॉट मेकिंग द राइट एंगल हेयर. ओके, सो सी, इफ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स, यहाँ पर कितने
पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स हैं। किसी भी वर्टेक्स से अगर हम ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लाइक वाइज दिस, ओके, सो दिस इज हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। किसी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड पर ड्रॉप कर रहे हैं, दिस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज इट्स हाइट। इस पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी, ये साइड्स के बीच की डिस्टेंस। अगर इसको आप रोटेट कर देंगे तब हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, वर्टिकल होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर और वर्टिकल होती है। तो यहाँ पर हाइट क्या है, ये। तो किसी भी वर्टेक्स से अगर सपोज मैंने यहाँ से हाइट ड्रॉप की है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और किस पर ड्रॉप हो रही है, इस साइड पर ड्रॉप हो रही है। तो जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं उस साइड को बोलते हैं बेस, ओके। तो इस हाइट के लिए बेस क्या है, ये, क्योंकि इससे ये राइट एंगल बना रहा है। इसी तरीके से इस हाइट के लिए बेस क्या होगा, ये साइड, ओके, दिस इज ऑल्सो हाइट। अब यही चीज अगर हम रेक्टेंगल के केस में देखते हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी इनकी साइड्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हाइट क्या होगी, यही होगी। ऐसे स्क्वायर के केस में क्योंकि इन दो साइड्स के एडजेसेंट साइड्स के बीच में राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, बट पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हमें क्या, हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा टू गेट इट्स हाइट, ओके। नाउ सी एरिया की बात कर रहे हैं तो क्या एरिया होता है, तो देखिए कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। अगर इतने किसी वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें कि यहाँ से ये पार्ट कट करके इसको किस साइड, इस साइड शिफ्ट कर दें, तो हमारा यही पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए किस में चेंज हो जाता है। देखिए आपने इतना पीस, ये ट्रायंगुलर पीस कट कर दिया तो हमारा ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ये तो हाइट ही रहेगी, ठीक है। और इस कटआउट को हमने कहाँ, यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, मतलब कि यहाँ पर। देखिए यहाँ से ट्रायंगुलर पीस कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो ये पैरेललोग्राम क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। किस में चेंज हो गया, किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, रेक्टेंगल में, ओके। तो ये एक्टिविटी है, आप घर पर करके देखिए इसको कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए पेपर पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। तो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर पीस को आपको कट करना है, उस ट्रायंगुलर पीस को आपको कहाँ, इस साइड, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इस साइड शिफ्ट करिए, यहाँ पर पेस्ट करिए। तो आप क्या देखेंगे कि ये पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ओके। तो देखिए हाइट आपकी यही है, ये भी क्या है, हाइट ही है, ओके। अब बेस में देखिए इतना बेस था जब ये पैरेललोग्राम को हमने कट नहीं किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो इस हाइट के लिए ये क्या थी, साइड, इस पैरेललोग्राम की साइड बेस थी, ओके। अब इतना पीस कट करके ट्राइंगल की ये जो साइड है, जो बेस का पार्ट है, इसको हमने कहाँ पर शिफ्ट किया है, इस साइड शिफ्ट कर दिया है, ये देखिए। तो बेस तो आपका सेम है, बेस की लेंथ तो सेम है। अगर यहाँ से मैं कुछ पार्ट कट करके यहाँ शिफ्ट कर दे रही हूँ तो बेस की जो लेंथ है दैट इज सेम, ओके। अब देखिए ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की लॉन्ग साइड क्या होती है, लेंथ होती है, ओके। और ये शॉर्ट साइड क्या होती है, ब्रेथ होती है, बी। तो जब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो यही बेस पैरेललोग्राम का क्या हो गया, लेंथ हो गया, और इसी पैरेललोग्राम की हाइट क्या हो गई, रेक्टेंगल की ब्रेथ हो गई, ओके। एरिया तो सेम ही है, पैरेललोग्राम का आपने एक पीस कट करके उसके दूसरे साइड पेस्ट कर दिया, तो एरिया तो सेम ही है पैरेललोग्राम का। आप एक पीस यहाँ से कट करके किसी और जगह पेस्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी एरिया, तो एरिया क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
is equal to the area of this rectangle, formed rectangle. Formed. Okay, and we know that area of rectangle is what? Length into breadth. ओके अब देखिए यहाँ पर लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है इस पैरेललोग्राम की? बेस है, तो लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बेस। एंड ये ब्रेथ रेक्टेंगल की क्या है? हाइट है पैरेललोग्राम, सो ब्रेथ की जगह हम हाइट लिख सकते हैं। ओके, बेस को पैरेललोग्राम के केस में बेस को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और रेक्टेंगल के केस में बी क्या होती है? ब्रेथ होती है। इसी तरीके से हाइट को एच से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। बेस अगर आपका ये है तो हाइट करस्पॉन्डिंग क्या होगी? जो इस पर परपेंडिकुलर होगी। अगर और 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं पैरेललोग्राम में, तो कोई भी साइड को आप बेस बना सकते हैं। ओके, सपोज दिस इज द साइड, सपोज दिस साइड यू टेक एज बेस, you take as base, so this will be the corresponding height. ओके, इस बेस के लिए करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, सो 4 वर्टेक्स से आप हाइट ड्रॉप कर सकते हैं और 4 साइड्स को आप बेस ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ओके, सो एनी साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम कैन बी base. Okay, so area of parallelogram is base into corresponding height. अब ऐसा नहीं है कि हाइट हम ये ले रहे हैं तो बेस ये साइड हो जाएगी, नो, ये हाइट जिस साइड पर परपेंडिकुलर है वही उसका बेस होगा। ठीक है, इस हाइट के लिए बेस क्या होगा? ये साइड। इस हाइट के लिए बेस क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल साइड। ओके, सो इसलिए यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज़ करें? करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर बेस ये है तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? जो इस पर परपेंडिकुलर होगी। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, एंड एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट में हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर पैरेललोग्राम इफ वी हैव गिवन इट्स मेजरमेंट। सी, for example, if you have a parallelogram in which you have given height 4 cm and corresponding base as 7 cm. ओके, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is base into corresponding height. ओके, तो यहाँ पर बेस क्या गिवन है? मीन्स ये साइड क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स इस बेस पर हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो हाइट आपको कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। सो 7 इंटू 4 मीन्स 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर में आप लिखते हैं। ओके, सो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सेंटीमीटर पावर 2। ओके, और अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो यही स्क्वायर पहले लगेगा, सेंटीमीटर बाद में, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब सपोज आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा होता, ABCD आपको पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें एक हाइट B, सपोज इट्स नेम इज P, BP आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी करस्पॉन्डिंग बेस CD आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब दूसरी हाइट दूसरे वर्टेक्स से ड्रॉप की गई है, DE की लेंथ आपको निकालनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, ये जो पेयर हमें बेस और हाइट का दे रखा है उससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब पैरेललोग्राम तो सेम ही है, आप हाइट बेस कुछ भी लीजिए, एरिया तो सेम ही रहना है।
ओके, तो यहाँ पर हाइट और बेस आपको पता है, देन यू कैन कैलकुलेट एरिया, इट इज़ 28 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, B into H, base is 7 centimeter, height is 4 centimeter, so area will be 7 into 4 means 28 centimeter square. Now if you know the area of this parallelogram and wanna find the length of this height, so using the same formula we can find out it. See how. As the area of this parallelogram we have calculated 28 centimeter square. So area of parallelogram ABCD, base into height. ओके, तो अब यहाँ पर हम बेस और हाइट का कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करनी है ये हाइट, तो इसकी बेस क्या होगी, BC होगी. मीन्स बेस BC है और हाइट क्या है, DE. DE हमें फाइंड करनी है. इस DE को फाइंड करना है और इसकी करस्पॉन्डिंग बेस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, और एक बेस और हाइट का पेयर आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उसकी हेल्प से आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया. अब इस एरिया का यूज़ हमें किस में करना है, DE को फाइंड करने में. सो सी, एरिया ऑफ ABCD वी हैव कैलकुलेटेड 28. ओके, एंड BC यू हैव गिवन 5 and DE we have to find out. Okay, so transpose this 5 to this side. So 28 upon 5 is equals to DE. So DE will be 5 5s are 25, then decimal 5 6s are 30, means 5.6 centimeter. Okay, DE की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5.6 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सपोज आपको पैरेललोग्राम दे रखा हो और उसमें एक बेस और हाइट का पेयर का मेजरमेंट आपको दे रखा हो. ओके, और दूसरे पेयर में से एक आपको बेस दे रखा हो सकता है आपको हाइट दे रखा हो. तो यहाँ पर जैसे क्या हाइट आपसे पूछी गई है, तो बेस उसका करस्पॉन्डिंग बेस आपको दे रखा था, तो आपको पहले क्या जो गिवन है बेस हाइट का पेयर उससे एरिया कैलकुलेट करना है. एरिया आपको आ जाएगा, तो बेस आपको दे रखा है, देन यू कैन कैलकुलेट इट्स हाइट. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. इफ सपोज वी हैव अ स्क्वायर, ABCD. Okay, it's a square. If we draw its diagonal, so you can see this diagonal divides this square in two triangles, DAB and BCD. two triangles में divide कर रहा है. ओके, अब देखिए यहाँ से ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. मीन्स सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो और ये एंगल क्या होता है स्क्वायर में, राइट एंगल होता है. सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ये हाइपोटेनस हुई, इस हाइपोटेनस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हाइपोटेनस दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है. ओके, क्योंकि ये साइड क्या है, इस साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है. तो इसका मतलब हाइपोटेनस क्या आएगी, सेम आएगी. मीन्स द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ सेकेंड ट्राइंगल. सो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. कॉन्ग्रुएंट होंगे मीन्स सेम साइज के होंगे. इसका मतलब इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा. एरिया भी सेम होगा. तो देखिए 2 ट्राइंगल में ये स्क्वायर डिवाइड हो गया है. मीन्स इसका जो एरिया है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, 1 ट्राइंगुलर पीस इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. ओके, इन दोनों ही ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो दोनों मिलकर क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. इसका मतलब द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज 2 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर.
or we can say area of this triangle is half of the area of this whole square. Okay, see, area of each triangle दोनों अगर ट्राइंगल का हम एरिया कैलकुलेट करें, या तो इसका या तो इसका, क्या है, ये होल स्क्वायर के एरिया का हाफ है, मीन्स हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, और स्क्वायर का एरिया हमें पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड. ओके, इफ सपोज साइड इज 4 centimeter, so all the 4 sides will be 4 centimeter. Okay, so area of this triangle will be half into 4 into 4 means 16 upon half means 8 centimeter square. ओके, दोनों ही ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया है, 8 सेंटीमीटर. सो 8 प्लस 8 16 एंड 16 इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर ABCD. ओके, इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल के भी डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस रेक्टेंगल इज PQRS और इसके एक डायगोनल को हम ज्वाइन करा रहे हैं. ठीक है, रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर, सो दिस ऑल्सो भी 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज सपोज 5 सेंटीमीटर, सो दिस विल ऑल्सो भी 5 सेंटीमीटर. अब देखिए, आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिए और रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री. तो यहाँ पर ये भी क्या हुई, इसकी हाइपोटेनस, और दोनों ही ट्राइंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनस सेम है. अब देखिए, इस साइड के इक्वल ये साइड है, इस साइड के इक्वल ये साइड, मीन्स दोनों लेग्स क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल मेजरमेंट के. बचा आपके पास क्या, हाइपोटेनस, वो भी क्या है, कॉमन है तो इक्वल होगी. मीन्स साइज ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द साइज ऑफ दिस ट्राइंगल. मीन्स दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब साइज सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. इसका मतलब दोनों ट्राइंगल के एरिया को अगर हम सम करा दें तो वो क्या, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा. इट मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल is half of the area of this rectangle. Okay, area of each triangle is half of area of rectangle. Okay, so half into area of rectangle क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर क्या है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ 8 इज 4 इंटू 5 मीन्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. 20 प्लस 20 इज 40. और देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 into 5 is 40 centimeter square. Okay, so in case of square and rectangle, if you join the diagonal divides in two congruent triangles. Okay, diagonal आपका चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अगर आप कोई भी डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल 2 congruent triangles में डिवाइड करता है. कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब सेम साइज का होगा, इसका मतलब एरिया क्या होगा, सेम होगा. मीन्स एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल विल बी द हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो ये तो पर्टिकुलर केस हुआ कि रेक्टेंगल के केस में अगर ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे तो क्या एरिया, स्क्वायर के केस में ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे तो क्या एरिया होगा. बट इन जनरल व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट्स फाइंड आउट. अब बात हमें करनी है कि जनरली ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल कैसा हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, किसी भी जनरल. मीन्स अगर हम एक स्केलिन ट्राइंगल लेते हैं सपोज इस तरीके से,
ओके, क्या है डिफरेंट साइड्स का. सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर. This is a scalene triangle because all the three sides of this triangle are different. Okay, different measurement के इसलिए ये scalene triangle है. अगर इस scalene triangle का हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे? देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल में आपको पता है एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, 2 साइड्स चाहिए हैं और दोनों साइड्स कैसी होनी चाहिए, मीन्स 2 लाइन सेगमेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर होंगे. तो यहाँ ट्राइंगल है. अब ट्राइंगल आपका कैसा भी हो सकता है, नॉन राइट एंगल भी हो सकता है. ठीक है, सपोज दिस इज ट्राइंगल इन विच नॉट एनी एंगल इज राइट एंगल. ओके, तो तब इस केस में इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? तो किसी भी वर्टेक्स से आप ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दैट विल बी द हाइट ऑफ दैट ट्राइंगल. सपोज इस वर्टेक्स से, इट्स नेम इज ABC and we are dropping perpendicular from this vertex to the opposite side BC. Okay, so this is the height of this triangle ABC. Okay, since there are 3 vertex, so we can drop 3 height from any of the vertex. Okay, 3 वर्टेक्स हैं आपके पास, तो 3 वर्टेक्स से आप ऑपोजिट साइड पर हाइट ड्रॉप कर सकते हैं. सो 3 हाइट एग्जिस्ट कर सकती हैं. बट हाइट ये है जिस ऑपोजिट साइड पर ये ड्रॉप हो रही है उसको हम बेस बोलते हैं. ओके, तो कोई भी साइड अभी आपका बेस हो सकती है. ओके, कोई भी साइड बेस हो सकती है. अगर सपोज मैं यहाँ से इस वर्टेक्स से हाइट ड्रॉप कर रही हूँ तो बेस आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा. इसी तरीके से अगर इस वर्टेक्स से हाइट ड्रॉप करी हूँ तो बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये स्केलिन ट्राइंगल ABC इसको पेपर पे ड्रॉ करना है और इसका कटआउट लेना है. ठीक है, कटआउट लेने के बाद आपको इसी ट्राइंगल की एक कॉपी बनानी है. क्या करना है, जो कटआउट लिया आपको उसको दूसरे पेपर पर रखकर दूसरे पेपर का कटआउट उसी ट्राइंगल की कॉपी को लेना है. ठीक है, अब कॉपी को आपको कैसे, इस तरीके से ज्वाइन कराना है. ये इस ट्राइंगल की हमने इस कॉपी को इस तरीके से ज्वाइन करा दिया कि ये जो साइड थी वो इसके ऑपोजिट आ रही है 6 सेंटीमीटर, इस साइड के ऑपोजिट साइड ये आ रही है, और जो AC है मीन्स जो थर्ड साइड है दैट इज़ कॉमन. इस तरीके से आपको ज्वाइन कराना है. तो देखिए ये आपका क्या फॉर्म हो गया, पैरेललोग्राम. ओके, ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी पैरेलल हैं, इक्वल हैं, बट ये जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल नहीं है. जरूरी नहीं है कि ये राइट एंगल हो. ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, दैट विल बी अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर भी सेम ऑपोजिट है, साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, बट एंगल नहीं. हम एंगल यहाँ राइट एंगल हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ क्या कि स्केलिन ट्राइंगल लिया. स्केलिन ट्राइंगल की कॉपी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया थर्ड साइड के अलोंग. ओके, तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म हो गया, पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया. इफ सपोज दिस इज D वर्टेक्स. ओके, सो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. तो देखिए अगर इस वर्टेक्स से हाइट को ड्रॉप करते हैं तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो बेस क्या होगा, ये साइड. ठीक है, बेस क्या होगी, ये साइड होगी, और ये क्या होगी, आपकी हाइट हो गई. सो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. कोई भी साइड पैरेललोग्राम की बेस हो सकती है. तो यहाँ पर क्या BC बेस है और हाइट
परपेंडिकुलर किसी भी वर्टेक्स से हो सकता है। तो ये हाइट हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। ओके, सो सी this side is equal to this side and this side is equals to this side and this third side is equal and common between these two triangles। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, सेम साइज का कट किया था। कटआउट जो लिया है ट्राइंगल का सेम साइज का है, मीन्स ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की इक्वल है। तो दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम साइज के हैं, तो उनका एरिया भी सेम होगा। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ओके, एरिया क्या होगा, दोनों का सेम होगा। और दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर दें, दैट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से किसी भी ट्राइंगल का एरिया इस होल पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। सो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल is half of area of parallelogram। ओके, सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखिए इस ट्राइंगल के लिए भी ये हाइट है, पैरेललोग्राम की तो ये हाइट है और ट्राइंगल के लिए भी यही सेम हाइट है। और अगर हम इस ट्राइंगल के बेस को देखें तो ये क्या है, पैरेललोग्राम का भी बेस है। मीन्स हाइट एंड बेस आर द इक्वल फॉर ट्राइंगल एज वेल एज पैरेललोग्राम। ओके, तो ये बेस जो हम पैरेललोग्राम का ले रहे हैं वो ट्राइंगल के लिए भी है और हाइट भी ट्राइंगल के लिए है। तो इस तरीके से ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, अब देखिए ट्राइंगल का एरिया ये है, दोनों ही ट्राइंगल के एरिया को जब हाफ हाफ ऐड करेंगे दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स बी इंटू एच। हाफ हाफ विल बी 1। The sum of area of these two triangle is equal to the area of parallelogram. Okay, so area of each triangle will be half into base into height. Okay, so we can say area of any triangle is half into base into height. ओके, और बेस को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को H से। सो फॉर्मूला हैज़ बिकम हाफ इंटू बी इंटू एच। तो किसी ट्राइंगल का अगर आपको हाइट पता है और उसका करस्पॉन्डिंग बेस पता है, देन यू कैन फाइंड आउट बाय पुटिंग द वैल्यूज, रेस्पेक्टिव वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। दिस इज अ triangle ABC in which height of it AD, that is 4 centimeter long, and its corresponding base is 7 centimeter. So the area of this triangle ABC is half into base into height. So half, base is 7 centimeter and height is 4 centimeter. So 7 4 ja 28 into 1 is 28 upon this 2 means 14 centimeter square. ओके, तो किसी भी ट्राइंगल की अगर आपको हाइट पता है, उसका करस्पॉन्डिंग बेस पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया बाय पुटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों इंटरलिंक है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Okay, so that's all about today's session in which we have discussed the area of parallelogram and area of triangle. If you have any query, doubt related to today's concept, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise 11.2. Till then, keep watching my channel. Thank you.